Assalamualaikum class 7. Hope you are keeping well. Dear students, here is your book of English, New Oxford Modern English. Dear students, in our previous lecture, we have completed the reading of Unit 1A, Light in the Night. That was about the history of street lights. And now today we are going to start our exercises. Exercise A, part 1 and 2, part 1, 2 and 3 we will do today. And my dear students, here I will tell you that these videos are just for your understanding and you have to learn all of your exercises from your notes that you have received from the school. Okay students, exercise A, part 1, answer the following questions. Question number A, before street lamps were introduced, what did people do on cloudless, moonlit nights? Why did they need to wait for these weather conditions? मैंने डिटेल में आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी कि वाई पीपल नीड फॉर दीज वेदर कंडीशंस बिकॉज देयर वर नो स्ट्रीट लाइट्स सो पीपल नीड टू वेट फॉर दीज वेदर कंडीशन. कौन सी वेदर कंडीशन को वो इंतज़ार करते थे? क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स को. एंड व्हाट डिड पीपल डू ऑन दीज नाइट्स? पीपल गो आउट टू सोशलाइज विथ पीपल और गो आउट टू सोशलाइज मीन कि वो आपस में मेल मिलाप के लिए बाहर जाते थे और वो इन कंडीशंस का इसलिए इंतज़ार करते थे क्लाउडलेस मूनलिट नाइट का बिकॉज देयर वर नो स्ट्रीट लैम्प्स. क्वेश्चन नंबर बी, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड, what were the dangers that people faced if they went out at night? कहने के when street lamps were not introduced, what dangers people faced when they went out at night? Before street lamps were introduced, the danger that people faced if they went out at night, they could injure themselves, they could rob or they could injure themselves. Who were link boys and what did they do? Link boys कौन थे and what did they do? और उनका क्या काम था? The link boys were young men who would, for a small fee, hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets. लिंक बॉयज़ अपनी खिदमत लोगों को पेश करते थे और बर्निंग टॉर्च या लैम्प को उनके आगे लेके चलते थे. What did the work of a लैम्प लाइटर इन्वॉल्व? वो कहने के लिंक बॉयज़ के बाद हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे लैम्प लाइटर. लैम्प लाइटर मीन मशल ब्रदर लड़के. उनका क्या काम था और वो क्या काम सर अंजाम देते थे? तो वर्क ऑफ अ लैम्प लाइटर इन्वॉल्व पुटिंग अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस ऑफ देयर एम्प्लॉयर एंड मेकिंग श्योर इट वॉज लिट. कि वो ड्यूटीज़ लेते थे कि वो घरों के बाहर लैम्प को जलाएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो सारी रात उनका वो लैम्प जलता रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है जी, रफली हाउ मैनी गैस लैम्प्स आर देयर इन लंदन टुडे? कि लंदन में आजकल कितने लैम्प्स पाए जाते हैं? तो इन लंदन टुडे देयर आर रफली 1500 गैस लैम्प्स. अभी भी उसमें मौजूद हैं 1500 गैस लैम्प्स पाए जाते हैं. हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे? कि टुडे हाउ मैनी पीपल्स आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स? इन लैम्प्स को लाइट अप करने के लिए कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों को इसका चार्ज दिया गया है? 5 people are employed to light these lamps today. What were some of the unpleasant aspects of the early oil lamps? Early oil lamps के unpleasant aspects क्या थे? Some of the unpleasant aspects of the early oil lamps were that the oil in them had an unpleasant odor. Unpleasant odor mean unpleasant smell थी उसकी and they had to be carefully cleaned. उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ साफ़ करना पड़ता था. What was dangerous about the gas lamp that were introduced in the 1800s? वो कहने के 1800s में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस थी? जो कि गैस लैम्प्स ईजाद हुए या इंट्रोड्यूस्ड हुए तो उनकी सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या बात थी? The dangerous thing about those gas lamps was that every now and then one would blow up.
every now and again. Every now and again, this word is again, not then. You have to correct it in your notes. Everyone, every now and again would blow up, कि उनमें से कोई भी लैम्प किसी भी टाइम पे क्या होता था, वो बर्स्ट हो सकता था, वो फट सकता था हीट अप होने की वजह से। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प। व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, कि मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स हैं जो वो किस, अब उनके पास क्या पावर है। मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स मीन कि उनको किस चीज़ से रोशन किया जाता है, उनको किस चीज़ से लाइट अप किया जाता है। मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स वर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, कि आपकी जो मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। उसमें अब ऑयल या गैस लैम्प वाली बात नहीं रहेगी, बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, उनके बिजली के थ्रू चलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, हियर इज योर पार्ट बी ऑफ एक्सरसाइज ए। कॉपी द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू। कॉपी करें उन सेंटेंसेस को दैट आर ट्रू। चेंज द वंस दैट आर नॉट ट्रू सो दैट दे आर करेक्ट एंड देन राइट देम आउट। कि आपने बताना है यहाँ पे कि कौन से सेंटेंसेस ट्रू हैं और जो सेंटेंस रॉन्ग हैं उन्हें आपने क्या करना है, उनके रॉन्ग वर्ड को रीराइट करके दोबारा से आपने लिखना है। सेंटेंस नंबर ए को देखें, लंदन हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर पेरिस। लंदन में स्ट्रीट लैम्प्स पेरिस के पहले थे या बाद में थे। लंदन हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर पेरिस नहीं, बल्कि बिफोर की जगह वर्ड आएगा आपके पास आफ्टर पेरिस। इसको आपने आफ्टर को यहाँ पे तो आपको हाईलाइट हो रहा है वर्ड आफ्टर, लेकिन आपको नोट्स पे दिया गया है सेंटेंस को आपने दोबारा से रीराइट करना है। अगेन सेंटेंस नंबर ए को रीराइट करेंगे। सेंटेंस नंबर बी देखिए जी, लंदन ग्रू रैपिडली इन द 1700s। ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है आपका, ऐसा ही है। लैम्प लाइटर्स वर्क ऑल डे, ऐसा नहीं है जी। लैम्प लाइटर वाला देखिए क्वेश्चन, अब आपका ऑप्शन नंबर सी है जो लैम्प लाइटर्स वर्क ऑल डे, वो सारा दिन काम नहीं करते थे, बल्कि ट्रू सेंटेंस ये होगा लैम्प लाइटर वर्क इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग, वो सुबह और शाम में काम करते थे। दी लैम्प ऑयल यूज टू गिव ऑफ आ प्लेजेंट स्मेल, यहाँ पे आपके पास एक वर्ड की चेंजिंग आएगी। द ऑयल लैम्प्स यूज टू गिव ऑफ, आ नहीं आएगा बल्कि आ की जगह एन अनप्लेजेंट स्मेल। ऑप्शन नंबर ई चेक करेंगे, द लैम्प लाइटर्स यूज लैडर्स टू क्लाइंब अप एंड लाइट द ऑयल लैम्प्स, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है कि वो अपने लैडर्स को यूज़ करते हुए ऑयल लैम्प्स पे चढ़ते और उनको लाइट अप करते थे। चार्ल्स डिकन्स वाज अ लैम्प लाइटर। चार्ल्स डिकन्स वाज अ लैम्प लाइटर, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है, इसको आप अगेन रीराइट करेंगे। चार्ल्स डिकन वाज नॉट अ लैम्प लाइटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी RTC आंसर द फॉलोइंग्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। हमने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑप्शंस ए देखिए, जो अथॉरिटीज़ रियलाइज द बेनिफिट्स दे ब्रॉट एंड टू कवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम। अथॉरिटीज़ को जब स्ट्रीट लैम्प्स की अहमियत का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने उनकी मेंटेनेंस और उनकी देखभाल और उनको लगाने का जो उनको नस्ब करने का काम था अपने कंट्रोल में ले लिया। व्हाट इज़ मीन बाय द अथॉरिटीज़? The authorities refers to the people in charge of country, the government, the ruler। कि जो उस वक़्त की गवर्नमेंट थी या जो रूल कर रहे थे उन्होंने अथॉरिटीज़ वाला वर्ड उनको रेफ़र कर रहा है। What were the benefits of having street lamps? स्ट्रीट लैम्प्स के क्या फ़वाइद थे जी? स्ट्रीट लैम्प्स reassured people and made them feel safer। स्ट्रीट लैम्प्स की वजह से लोग क्या हो रहे थे, खुद को महफूज ख्याल करने लग गए थे। ऑप्शन नंबर बी देखें जी RTC का, There's no more going to round to trim by delight, no more dripping down of the oil on the hats and bonnets of ladies and gentlemen when one feels in spirit. Any low fellow can light a gas lamps. Who said this? वो कहने जी आपने बताना है कि कौन जी कह रहा है। A character in Charles Dickens book The Lamp Lighter, एक करेक्टर है जो चार्ल्स डिकन की बुक में ये तमाम फीलिंग को बयान कर रहा है, इन तमाम कैफियत को या इन तमाम फीलिंग्स को वो बयान कर रहा है, जो वो कह रहा है कि अब हमारा काम भी चेंज हो चुका है। अब जी यहाँ पे उन्होंने बताया आपको कि 3 सेक्शन उन्होंने दिए हैं, उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे आपके नज़दीक जी। द 3 sections that are underlined are examples of old fashioned language. Discuss what each one means and write down your answers। कि इन 3 वर्ड्स को गोइंग द राउंड्स,
व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट्स एंड लो फेलो, इनके आपने वर्ड्स मीनिंग बताने हैं जी। गोइंग द राउंड्स का हमारे पास मीनिंग आएगा अ राउंड रेफर्स टू द एक्ट ऑफ विजिटिंग अ नंबर ऑफ पीपल, मीन के उन जगहों पे जाने की या लोगों के पास जाने की। अब दिस नो मोर गोइंग द राउंड्स, अब लोग उसके गिर्द नहीं जाएंगे डे लाइट में उसको ट्रिम करने के लिए, लैंप्स को सेट करने के लिए। व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट मीन व्हेन वन हैज़ दैट मूड, कि जब हमारे पास जोश और जज्बा था लोगों के पास ऑयल लैंप्स और ऑयल लैंप्स को ऑन करने का जोश और जज्बा था, वो ये काम करना चाहते थे। एनी लो फेलो हेयर लो मीन्स रैंकिंग बिलो रादर पीपल आर थिंक, कि कोई भी आम सा बंदा है जो वो गैस लैंप्स को ऑन कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इट वॉज आवर टूडेज लेक्चर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आपने इस तमाम लेसन को या तमाम एक्सरसाइज को, जो मैंने आपको एक्सरसाइज ए का पार्ट 2 और 3 करवाया है, यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम योर नोट्स एंड आल्सो मेक अ रिटन प्रैक्टिस ऑन योर notebooks. Then you can understand your lectures, or you would understand your topic clearly or more betterly. Okay students, take care and Allah Hafiz.